So we have discussed magnetic field, how to find the magnetic field by using Biot-Savart law and Ampere's law. So today we are going to discuss how to find the magnetic force. Magnetic force acting on moving charge particle. Because if a charge is stationary, it behaves like an electric body, electric object, and if it is moving, it gets magnetized. So suppose if some external magnetic field is already present, that magnetic field is represented by cross, and the charge is stationary here in this field. So if this charge is stationary, इस पे कोई magnetic force act नहीं करेगा because an electric body is placed in an external magnetic field. Here this cross, I have represented external magnetic field by cross. So if a charge is placed which is stationary, initially if it is at rest, तो rest charge पे कोई magnetic force act नहीं करेगा because when it is stationary it behaves like an electric body, it has electric field but it is not magnetized until it is moving. So stationary charge particle पे कोई magnetic force act नहीं करेगा. When it moves, now suppose if this charge is moving with some velocity v, तो जैसे ही ये move करना start करेगा it gets magnetized. अब इसके पास अपना इसका खुद का field आ जाएगा. Now it is magnetized. This charge is magnetized because of its velocity. When it gets magnetized, तो ये जो external field है, this charge will be forced by external magnetic field. So जब charge rest में रहेगा तो magnetic field को कोई मतलब नहीं उससे, because external magnetic field केवल magnetic bodies को ही force कर सकता है ना, magnetic field magnetic bodies को force करता है, electric field electric charges को force करता है और gravitational field like mass को force करता है. तो यहाँ पे a charge is placed in an external magnetic field. So when it is at rest, it behaves like an electric body which will not be forced by external magnetic field. Now, if this is a moving charge particle, so it would be forced by external magnetic field. So the magnetic force acting on a moving charge particle is what? QVB. Q is the magnitude of the charge, V is the velocity of the charge. So V is velocity and B is magnetic field. These two are vector quantities. So whenever you are multiplying two vectors, you have to specify whether it is dot product है या cross product. ये तो scalar है तो इसको तो directly लिख दिया. But V and B are both are vector quantities. So vector में हमको specify करना होता है कि dot product ले रहे हैं या cross product. Here result. अब देखो जरा result को देखो. Result is what? A vector quantity because force is a vector quantity. So by multiplying two vector we are getting a vector. It means यहाँ पे product कैसा होगा? Cross product. Because cross product का ही result vector देता है. Dot product का result क्या दे देता है? Scalar. So यहाँ पे velocity और magnetic field में क्या होगा? Cross product. अब इसको हम और लिख सकते हैं F is equal to what you can write QVB sin theta. So force, magnetic force FB, magnetic force acting on that moving charge particle is what? QVB sin theta. Where Q is the magnitude of that charge, V is the velocity of charge, and B is the magnetic field. But this magnetic field is what? External magnetic field in which that charge is moving. It is not the magnetic field of this charge. When this charge is moving, it gets magnetized, but it has some different magnetic field. We are not including that. We are not taking that magnetic field because the charge cannot be forced by its own magnetic field. कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद से खुद को फोर्स नहीं करता. हम खुद से अपने आप को फोर्स नहीं करते ना. तुम खुद से अपने आप को फोर्स नहीं करोगे. तुमको कौन पढ़ने के लिए फोर्स करेगा? टीचर फोर्स करेगा. अपने आप से तो नहीं फोर्स करते. तो कोई भी स्टूडेंट अपने आप से खुद को नहीं फोर्स करता. क्लियर? सो वी कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन आवरसेल्फ. वी आर ऑलवेज फोर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट. तो कोई भी एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट मैग्नेटिक फील्ड है. दिस फील्ड इज रिस्पांसिबल फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज. सो F is equal to what? QVB. ये जो B है ये चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड है. दिस चार्ज इज मैग्नेटाइज्ड बिकॉज़ इट इज मूविंग. सो इट इज मैग्नेटाइज्ड बट द फील्ड व्हिच वी आर यूजिंग इन दिस एक्सप्रेशन दैट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. So force acting on that moving charge particle is what? QVB sin theta, where theta is angle between this theta is angle between velocity and magnetic field because you have taken cross product of V and B. So angle between velocity of the charge and external magnetic field. अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो. मैंने मैग्नेटिक लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया है? क्रॉस से. इट मींस ऑल द मैग्नेटिक लाइंस आर इन इनवर्ड डायरेक्शन. सभी बोर्ड के अंदर जा रही हैं लाइंस. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज किस जा रहा है? एक्स एक्सिस में जा रहा है. तो वी कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? हमारा ये थंब होता है. दिस इज व्हाट द फर्स्ट फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर एंड लाइक दिस. दिस इज व्हाट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज वेलोसिटी. या यहाँ पे हमारा करंट का डायरेक्शन होता है. तो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन में करंट होता है.
So if it is a positive charge, so direction of motion of the positive charge is same as direction of flow of current. Current और पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन होते हैं, तो इसी को हम, ये जो करंट है यहाँ पे ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. तो इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पे फ्लेम बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फोर्स. तो फर्स्ट क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फिक्स करो. इन दिस रीजन मैग्नेटिक लाइंस आर इन इनवर्ड डायरेक्शन. तो पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया. माय फर्स्ट फिंगर इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ the current, because it is a positive charge which is moving towards positive x-axis, so the current is represented by middle finger. So हम इस b को disturb नहीं करेंगे. Now change the direction of velocity of the charge. Now magnetic field is represented by first finger and the charge is represented by the middle finger. So thumb is pointing the direction of force. So इस पे जो force act कर रहा है, the magnetic force acting on that charge, that force is acting in this direction. और वैसे भी देख लो, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, प्लस आई कैप में है. दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, माइनस जे कैप. वेलोसिटी इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, टुवर्ड्स, बिकॉज़ दैट इज इनवर्ड फील्ड. तो आउटवर्ड आएगा तो प्लस, माइनस जे नहीं, माइनस के यार. नेगेटिव जेड एक्सिस में है ना, मैग्नेटिक लाइंस आर इनवर्ड, लाइंस आर देयर. So inward lines is what, negative z axis, and outward अगर होती है तो हम उसको positive z axis. तो VB, अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, I क्रॉस माइनस के. तो नॉर्मली I क्रॉस K क्या होता है, अगर I को हम K से मल्टीप्लाई करें तो J, तो ये हमारा क्या हो जाएगा J. अगर ये माइनस नहीं होता तो I क्रॉस K इज व्हाट, माइनस J, बट बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइड करके आई क्रॉस के लिखोगे तो माइनस जे आएगा, माइनस ऑफ माइनस जे. इसको ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस ऑफ माइनस जे व्हिच इज जे. सो फोर्स इज डेवलप अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो F इज इक्वल टू व्हाट, QVB sin थीटा. यू कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड करंट, या फिर डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करके क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो भी तुमको मिल जाएगा. क्लियर. सो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा. अब सपोज करो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इफ देयर आर थ्री केसेस. इफ सपोज दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस, अ चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस, द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो योर वेलोसिटी इज मेकिंग 0 डिग्री, सो थीटा इज 0. So there won't be any magnetic force. This charge will not be forced by this external magnetic field. Second case में, if charge is perpendicular, this is what, the magnetic field, and a charge is moving like this. So here theta is 90 degree. When theta is 90 degree, magnetic force is maximum, which is QVB. So whenever a charged particle is moving in a magnetic field, a perpendicular force, the force which is perpendicular to velocity, is acting on that charge. So because of this perpendicular force, it gets circulated, because that is the condition of circular motion. Whenever direction of force is perpendicular to direction of velocity, that particle performs circular motion. So ये जो charge है ये क्या perform करेगा, uniform circular motion. This force, this magnetic force is responsible for change in its direction. This magnetic force cannot change the magnitude of the velocity. अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, उसका केवल डायरेक्शन चेंज. सो मैग्नेटिक फील्ड कैन सर्कुलेट अ चार्ज बट इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. इस v की वैल्यू नहीं बदल पाएगा लेकिन उसको उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बिकॉज़ हियर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो इट गेट्स एक्सेलरेटेड बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा घटा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू को नहीं बदल सकता, वो केवल डायरेक्शन को बदलता है. क्लियर. So this charge is forced because of this magnetic field. That force is perpendicular to velocity. Because of that perpendicular force, it gets circulated. So force acting on this moving charge particle is what, QVB sin theta. अब ये अगर ये circulate हो रहा है तो we can find the radius of this track, किस round, जिस round में वो circulate हो रहा है, जिस circular path में वो move कर रहा है, you can find the radius of that path, you can find the time period, kinetic energy, velocity, everything. Because when it is revolving, the force acting towards the center. When it is revolving, force acting towards the center is what, magnetic force. So here is the magnetic force. In which a charge.
So in this, a charge is circulated like this. Initially, if charge is moving like this, it is a positive charge. So if that force is acting, magnetic force is acting towards the center because of that centripetal force. That magnetic force is nothing but the centripetal force. So FB is equal to what? mv square by r. That is the expression of centripetal force. Now FB is what? Magnetic force. So QVB is equal to mv square by r. Now by simplifying this, you can get the radius VB is cancelled. So R की value what you will get? mv upon QB. ये radius का expression है उस circular path में. Second, you can find its velocity. So V is equal to R Q B by M. This is what expression of velocity. You can find the kinetic energy too. So kinetic energy is what? Half mv square. Kinetic energy is half m v square. So that is half m v square. इसको स्क्वायर करके वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर. 1m is cancelled. So expression of kinetic energy is what? Half r square q square b square divided by m. This is the expression of kinetic energy. So just by equating the forces, that magnetic force with centripetal force, so that QVB is equal to mv square by r, you can find radius, you can find velocity. Once you can get the velocity, you can get the kinetic energy too. अब यहाँ से तुम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो. The time taken by that particle to complete the trek. So time period is what? Distance, that 2 pi r upon speed. अब यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. So time period is what? 2 pi r upon v. V is what? R q b by m. So R q b divided by m. This r is cancelled. So what you will get? 2 pi m upon qb. This is the expression of time period. So time period we are getting t is equal to 2 pi m upon qb. This is the expression of time period. And if you are taking reciprocal of this, time period, you will get the frequency. So frequency n is equal to what? 1 upon t, reciprocal of this time period. So that is qb upon 2 pi. So these are the expressions which we are going to get. Clear? So when a charged particle is moving in a magnetic field, it gets circulated because of that magnetic force. This force can change the direction of velocity, but it cannot change its magnitude. अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. यूनिफॉर्म मींस it is revolving with a constant speed. Clear? That magnetic force is responsible for change in direction, but not responsible for change in magnitude of the velocity. Velocity की वैल्यू नहीं बदलेगा, केवल उसका डायरेक्शन बदलते जाता है. Because of this centripetal force. So whenever a force is perpendicular to velocity, particle perform circular motion. So everywhere velocity का डायरेक्शन बदल रहा है. जैसे यहाँ पे जाएगा, when it reaches here, velocity is like this, force will be acting like this. When it reaches here, velocity is like this, force will be acting like this. When it reaches here, velocity is like this, force will be acting towards the center. So magnetic force acting on that charge is nothing but centripetal force, which is mv square by r. So Fb is equal to mv square by r. Then you can put the value of Fb. अब यहाँ पे देखो मैंने sin theta नहीं दिया है. I have not taken QVB sin theta. Why I have not taken sin theta? Because everywhere that velocity is perpendicular to magnetic field ना. Because magnetic lines किस axis में है? Z axis में है, negative Z axis में. तो at each and every point velocity is what? In the plane of board. ये board का जो plane है वो xy plane में है velocity. तो magnetic field के हर समय क्या है? Perpendicular here. It is perpendicular to magnetic field. यहाँ पे भी क्या? कहीं पे भी जाए. Even if you are taking here. So that is also velocity is perpendicular to magnetic field because lines are inside the board. Lines are in inward direction. तो lines तो हमेशा ऐसे ही हैं और ये velocity कैसे भी जाए हर जगह वो 90 डिग्री बना रहा है with the direction of magnetic field. Clear? So that's why I am not written here sin theta because theta is 90 degree, so sin theta is 1. So this is what the force acting on a moving charge particle. The charge has to be in motion because if a charge is stationary, it will not be forced by external magnetic field. अगर charge station रहेगा तो it behaves like an electric body. So electric particle cannot be forced by magnetic field. Only a magnetic particle can be forced by magnetic field. So it has to be a moving charge particle. वो अगर moving charge particle आएगा, then only it would be forced by external magnetic field. Because same type के field, same type के particles को force करते हैं.
magnetic particles are forced by magnetic field, electric particles are forced by electric charges, are forced by electric field, and masses are forced by gravitational field. Clear? So mass को force करता है, charge को force करता है, और magnet को force करता है. Okay. So whenever a charge passes through a magnetic field, it would be forced, and you can find the direction of force by using Fleming left hand rule या cross product ले लो, उसको वेक्टर फॉर्म में लेके क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हो तो भी you'll get the direction of the force. ओके, अब सपोज यहाँ पे हम केसेस डिस्कस करेंगे. Now in the first case, अगर सपोज करो चार्ज पार्टिकल है इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस हैं, मतलब सफिशिएंट रेंज में मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह. दैट चार्ज इज वेल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वो चार्ज पूरी तरह अच्छे से अंदर है यहाँ पे. दिस चार्ज इज हियर व्हिच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, q चार्ज. That is completely inside the magnetic field, मतलब इसके चारों तरफ सफिशिएंट रेंज में मैग्नेटिक फील्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला जाएगा, वो बाहर नहीं जाने वाला है. मतलब इस चार्ज के सराउंडिंग में सफिशिएंट रेंज में मैग्नेटिक फील्ड. मैंने उतना बनाया नहीं, बट समझ लो पूरा है, चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस हैं. So when it is moving with velocity v, it would be forced by magnetic force, that Fb, which is acting, you can use Fleming left hand rule like this. So you'll get the force along positive y-axis. Because of that force, it would be circulated. तो देखो इस चार्ज के सराउंडिंग में सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड था, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू कंप्लीट अ सर्कुलर ट्रैक. उसने एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट किया, बिकॉज़ कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हुआ था. एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. क्लियर? सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज गेटिंग अ मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सो अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ इज कंप्लीटेड. क्लियर? सो द टोटल टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल इज 2 pi m upon qb, जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया था. बिकॉज वो टोटल टाइम उसको t लगा 2 pi m upon qb. उसके पास सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड था, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ना तो अंदर इंटर किया ना तो बाहर आया, वो पूरी तरह अंदर ही है. सेकंड केस, अगर सपोज करो जो रेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइन, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक लिमिटेड रीजन तक ही है, यहां से यहां तक ही है, लाइक दिस. इधर मैग्नेटिक फील्ड है, दिस व्हाट इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज यहां से आ रहा है, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग, वो आउटसाइड से है, किसी आउटसाइड रीजन से है, बाहर. पहले वो बाहर था और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है केवल, मतलब इस पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ. तो अगर ये बाहर से इंटर करता है तो स्टार्टिंग में फ्रॉम हियर टू हियर नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, बिकॉज चार्ज इज मूविंग इन एयर. क्लियर? तो एयर में मूव कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. इवन इफ इट इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. वो अपने आप को खुद से तो फोर्स करेगा नहीं. एक्सटर्नल फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक फोर्स. सो फ्रॉम हियर टू हियर नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज. जैसे वो इंटर करेगा, व्हेन दैट चार्ज एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट वुड बी फोर्स्ड. इसकी वेलोसिटी ऐसी है, और फोर्स कैसे एक्ट करेगा, लाइक दिस, मैग्नेटिक फोर्स. सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये टर्न लेना स्टार्ट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज वे में, और टर्न लेके फिर बाद में वो बाहर निकल जाता है. तो ये केवल हाफ सर्कल ही कंप्लीट कर पाएगा. इट कैन नॉट कंप्लीट द सर्कल इनसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज़ वो कोई भी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक रीजन में इंटर करता है, तो जितने एंगल से इंटर करता है उतने एंगल से बाहर आ जाता है. तो यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री. तो ये 90 से ही बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर, लाइक दिस. फिर आल्सो इट विल बी मेकिंग 90. तो जिस एंगल से वो इंटर करता है उसी एंगल से बाहर जाता है. एंड एट द सेंटर, ये जो आर्क है उसके सेंटर पे उसका डबल एंगल फॉर्म करता है. तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री फॉर्म हुआ, बिकॉज सेमी सर्कल इज कंप्लीटेड, पूरा हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कंप्लीटेड. तो इसने इंटर किया 90 डिग्री से, तो बाहर भी 90 से निकलेगा. सेंटर पे उसका डबल एंगल फॉर्म होता है, जितने से इंटर करता है उसका डबल एंगल सेंटर पे फॉर्म होता है. सो ये इंटर किया 90 से, तो सेंटर पे कितना फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री. सो हियर रेडियस का एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा, रेडियस वही रहेगा अभी भी, mv upon qb, बिकॉज आर्क लेंथ छोटा करने से रेडियस नहीं छोटा हो जाता, रेडियस तो वही रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड अभी हाफ हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू कंप्लीट द ट्रैक. उसने पूरा ट्रैक कंप्लीट ही नहीं किया, वो हाफ ट्रैक के बाद बाहर निकल गया.
तो हम इसका टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, t dash इज व्हाट, t by 2, हाफ ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ट्रैक। सो पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, 2 pi m upon qb, तो अभी हाफ ट्रैक ही कंप्लीट हुआ, तो t dash इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 pi m upon 2 qb which is equal to pi m upon qb. This is the time taken by this charged particle. इतने टाइम तक वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रहा। It cannot complete the track, ये पूरे ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज सफिशिएंट रीजन। इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि उस चार्ज के चारों तरफ समझो इनफाइनाइट रेंज तक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, वो बाहर नहीं निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या, वो बाहर से आया था, तो जब भी बाहर से इंटर करेगा, जितने एंगल पे इंटर करता है उतने एंगल पे बाहर निकल जाता है, एंड एट द सेंटर डबल ऑफ दैट एंगल इज फॉर्म। दिस इज द सेकंड केस। नाउ द थर्ड केस, अब सपोज वो इंटर कर रहा है 90 से नहीं, कुछ थीटा एंगल से इंटर कर रहा है। This is the region of magnetic field, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, which is represented by cross। यहाँ पे मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। चार्ज ऐसे आया इस साइड से, this is a positive charge, मतलब Q चार्ज मैं लिख रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव समझो। This is the velocity, ये थीटा एंगल से इंटर कर रहा है। तो जैसे वो इंटर कर जाएगा, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, इट वुड बी एक्टिंग लाइक दिस, बिकॉज़ जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर फोर्स लग रहा है, तो वो ये फोर्स क्या करेगा, चार्ज को इंटर नहीं करने देगा, वो ट्राई करेगा कि बाहर निकाल दो इसको। तो ये थीटा से अगर इंटर करता है तो थीटा से ही बाहर निकल जाएगा, लाइक दिस। हियर आल्सो इट विल बी मेकिंग थीटा एंगल ओनली। तो चार्ज इंटर किया था थीटा से, तो बाहर भी निकल रहा है थीटा से, और इसका जो आर्क का, ये जो आर्क लेंथ कवर हुआ, इसका सेंटर यहाँ पे लाई नहीं करेगा, इधर बाहर किधर लाई करेगा। दिस इज व्हाट द रेडियस। रेडियस का एक्सप्रेशन अभी भी सेम है, ये जो रेडियस बनेगा फोर्स उसी पे रहता है हमेशा, बिकॉज़ रेडियस 90 डिग्री बनाता है, लाइक दिस। क्लियर? हाँ, टाइम पीरियड चेंज होगा केवल। तो अब यहाँ पे हमारा सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 थीटा, बिकॉज़ रेडियस का एक्सप्रेशन अभी भी सेम है, तो रेडियस तो अभी भी वही रहेगा, mv upon qb, and it is making theta with the region of magnetic field, not with the magnetic lines. मैग्नेटिक लाइंस तो z एक्सिस पे हैं, तो ये चार्ज जब इंटर किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो परपेंडिकुलर ही है। If you are finding the angle between velocity and magnetic field, that is 90 degree, because velocity is perpendicular to magnetic field. This theta is what? It is not. This theta is not the angle between velocity and magnetic field. This theta is the angle between region of the magnetic field. जहाँ से magnetic field start हुआ, उसमें किस एंगल से velocity इंटर किया, चार्ज इंटर किया। क्लियर? So this theta is not the angle between magnetic field and velocity, because magnetic field और velocity तो perpendicular ही है। ये कैसे भी जाए, ये कहीं पे भी जाएगा, यहाँ पे जा रहा है फिर ऐसा टर्न ले रहा है, तो even if it is making a टर्न ले रहा है, फिर भी मैग्नेटिक लाइंस के साथ वो 90 ही है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। बट दिस थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉट विद द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? जो रेंज से मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट हुई है उसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। दैट वेलोसिटी इज नॉट मेकिंग थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वो परपेंडिकुलर ही है। क्लियर? So here V is, मैं लिख दे रहा हूँ, perpendicular to magnetic field, velocity magnetic field के perpendicular है। Theta is the angle between velocity, angle between velocity and range of या region of magnetic field। The starting point of so theta is the angle between velocity and starting point of range of magnetic field। magnetic field का रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के रेंज के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। बट थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हियर आल्सो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब टाइम, हाउ टू फाइंड द टाइम, टी डैश, ये टी डैश तक रहा, तो हमको मालूम है जो 2 पाई के लिए टाइम कितना लगता है, टी लगता है, तो यूनिट एंगल के लिए कितना लगेगा, टी अपॉन 2 पाई। सो 2 थीटा इज द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड एट द सेंटर, सो 2 थीटा के लिए कितना टाइम लगेगा, टी अपॉन 2 पाई इनटू 2 थीटा।
सो दिस इज व्हाट द टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा. If theta is given, then easily you can find ना, because 360 degree complete करता है. If one cycle is completed, then time taken is t. So when unit angle is completed, time taken is what, t by 2 pi. So if 2 theta is the angle which is subtended at the center. तो ये जो arc length है, ये arc कितना एंगल सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 2 थीटा. So 2 थीटा के लिए टाइम कितना लगेगा, t upon 2 pi into 2 theta. Yes. Now the next case, अब suppose if angle is given, यहाँ पे हमारा region of magnetic field है. This is what the range where magnetic lines are there. अभी इंटर करता है ऐसे, there is a positive charge. इंटर किया इसने 30 डिग्री पे. Here it is making 30. I have given the value. So here also it will make 30 degree because जितने एंगल से इंटर करेगा उतने एंगल से बाहर जाएगा. So at the center what angle it is going to make, 60 degree. Because at the center double of that angle is formed. तो ये अगर 30 है 30 तो यहाँ पे 60 बनेगा. अब अगर सेंटर पे 60 बन रहा है तो ये जो टोटल आर्क है उसका 1/6 पार्ट है. टोटल एंगल कितना होता है 360, तो उसका 1/6 पार्ट ही यहाँ पे कवर हो मैग्नेटिक रेंज के अंदर. बिकॉज दिस आर्क इज मेकिंग 60 डिग्री एट द सेंटर ना, तो टोटल लूप होता है कंप्लीट लूप कितना फॉर्म करता है 360 डिग्री. एंड दिस आर्क इज जस्ट फॉर्मिंग 60 डिग्री. इट मींस इट इज 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल रिंग या टोटल लूप. क्लियर? तो जो टी डैश होगा वो क्या हो जाएगा, t by 6 और रेडियस तो सेम रहेगा mv अपॉन, तो रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम हो जाएगा बिकॉज ये 1/6 एंगल है. तो t डैश कितना हो जाएगा t by 6. ओके, दिस इज द फोर्थ केस. अब मैं कोई और एंगल लेके देखता हूँ. फिफ्थ केस में देख लो. यहाँ पे फिर से एक रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है where magnetic lines are present like this way. अब यहाँ पे this is the external magnetic field D. अब यहाँ पे अगर चार्ज इंटर करता है this way, ऐसे इंटर किया उसने, this is the charge. अब इस केस में क्या होगा, जैसे वो इंटर कर जाएगा इस पॉइंट पे, तो जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स वुड बी एक्टिंग लाइक दिस. दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो ये मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज को पहले बाहर नहीं निकाला, वो पहले और अंदर ले जाएगा उसको. बिकॉज ये जो दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक रीजन ना, ये यहाँ पे जो फोर्स था स्टार्टिंग में ये फोर्स बाहर लग रहा था. इन दिस केस जहां पे वो इंटर किया उधर से ही फोर्स इन आउटवर्ड, मतलब मैग्नेटिक रेंज के बाहर फोर्स लग रहा है. बट इन दिस केस दैट मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये क्या करेगा, पहले उसको और अंदर ले जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के. सो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऐसा टर्न करना स्टार्ट कर देगा. टी ऐसे निकलेगा बाहर. ठीक है. सो व्हाटएवर एंगल इट इज मेकिंग, अब यहाँ पे देख लो, ये एंगल अगर मान लो वो थीटा है. अब सपोज इसको मैं 120 ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने ये 30 लिया, ऐसा दिया हुआ है, तो 30 है तो नहीं, 30 है तो कैसा, इधर 60 लिया. ठीक है. सो अगर यहाँ पे 60 लेते हैं तो यहाँ पे कितना बनाएगा 120 डिग्री. तो ये इधर बाहर निकल रहा है, तो इधर भी कितना फॉर्म करेगा 120. सो अब इस केस में क्या होगा, इसका सेंटर मैग्नेटिक रीजन के अंदर लाई करेगा बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो अब सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा फिर वो, मैंने बताया कि जितने एंगल से इंटर करता है, तो 120 से इंटर किया तो यहाँ पे कितना बनाएगा 240. यहाँ पे ये जो रीजन ऑफ मतलब रेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड था, उसके साथ 120 पे इंटर किया. दिस एंगल, इसको मिटा दो. दिस एंगल हियर इट इज मेकिंग 120 डिग्री. तो बाहर भी कितने से निकलेगा 120 से. तो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगा, डबल ऑफ दैट एंगल. अरे यार 240 इधर नहीं बनेगा, सॉरी, हाँ ये साइड में बनेगा. सो 240. तो आप सोचो 240 है, मतलब कितना पार्ट है वो टोटल एंगल का. 240 इज व्हाट 4 पाई बाई 3. तो अब हो गया, वापस यूज कर लो. तो टोटल 2 पाई के लिए कितना है, t है, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा t अपॉन 2 पाई. सो फॉर 2 पाई बाई 3 इट इज
t upon 2 pi into 2 pi by 3. So what you'll get t by 3. कुछ गलत हो गया ऐसा लग रहा है. 240 हमारा कितना होगा? 2 pi by 3 120 plus 120 240. So that is 4 pi by 3. मैंने कुछ गड़बड़ यहाँ पे 2 pi by 3 नहीं यार, ये 4 pi by 3 है ना. तो कितना हो जाएगा? 4 pi by 3. So what you'll get 2t by 3. That's the total time. Clear? तो अब ये कितने टाइम तक अंदर रहेगा? t dash is equal to 2 by 3 times of 2 pi m upon qb, the total time to complete a circular track, to complete a circular path. Clear? So अब अगर चार्ज की चारों तरफ सफिशिएंट रेंज में मैग्नेटिक लाइंस हैं तो ठीक है. अगर सफिशिएंट रेंज में नहीं है तो वो फिर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो बाहर भी आएगा. If initially it is well inside the magnetic field, then it is going to complete the track, complete the circular loop. But अगर वो बाहर से आगे इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में तो कंप्लीट लूप फॉर्म नहीं कर पाता. तो इन दैट केस रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी वो सारी चीजें नहीं चेंज होती. चेंज केवल क्या होता है? टाइम पीरियड. बिकॉज वो सफिशिएंट टाइम पूरा एक राउंड कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है. दैट्स टाइम पीरियड चेंजेस. या टाइम, जितने टाइम तक वो मैग्नेटिक रेंज में रहा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा, वो चेंज हो जाएगा. So in all the cases, whatever cases I have discussed, everywhere velocity, the velocity of the charge is always, in all the cases, velocity of charge is perpendicular to direction of magnetic field. Because in everywhere, in all the cases, magnetic lines are what? In inward direction. So whatever velocity is making, whatever is the direction of velocity of the charge on this board, it is always perpendicular to direction of magnetic field. यहाँ पे जो magnetic field और velocity हमेशा perpendicular थे. अगर suppose करो ये कौन सा फिफ्थ केस था ना. नेक्स्ट केस में इफ द नेक्स्ट केस देखो सिक्स्थ केस. If suppose this is the region of magnetic field, magnetic lines are like this. This is what B. And a charge is moving like this. This is the velocity of the charge. So here velocity is what? It is parallel to magnetic field. So direction between velocity of the charge and magnetic field is zero. The angle between velocity of the charge and magnetic field is zero. So it will not be forced. यहाँ पे force क्या हो जाएगा? QVB sin zero, which is zero. So no magnetic force is acting on this charge. तो ये undeviated एकदम straight ही जाएगा, कोई इसमें deviation नहीं आएगा. It would be moving like this only. No force, no circular arc. तो रेडियस बनने मतलब रेडियस क्या होगा इसका? जीरो. सारी चीजें बिकॉज फोर्स ही जीरो हो गया तो रेडियस भी क्या होगा? जीरो. वेलोसिटी रहेगी उसकी, वेलोसिटी तो वही v ही रहेगी. काइनेटिक एनर्जी भी यू कैन फाइंड. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर. और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू कवर द ट्रैक, सो कंप्लीट द ट्रैक. ये सर्कुलर आर्क में जा ही नहीं रहा. सेवेंथ केस, अगर सपोज करो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं, magnetic field is like this. This is what the magnetic field.